اللہ تعالیٰ ہم اب بھی پاکستان کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ گورنر صاحب سے میں درخواست کروں گا آج کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں میرے دوست فواد چودھری صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے منسٹری آف انفارمیشن کے اس نئے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ بلیو تھا، میرا ہمیشہ ماننا تھا کہ اگر انفارمیشن میں کوئی شخص صحیح معنی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ فواد چودھری ہی ہیں، جن کے اندر جو حکومتی کارنامے ہیں، حکومت کے جو کام ہیں، جو حکومت کے اقدامات ہیں، انہیں صحیح طور سے میڈیا کے ساتھ اجاگر کر سکیں، اور ان کی جو میڈیا کے ساتھ اپنی ایک ریپیوٹ ہے، جو ایک ریپوٹیشن ہے میڈیا کے ساتھ، جو ان کے تعلقات ہیں، اس سے استفادہ حاصل بھی حکومت کر سکتی ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب کو کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو خیرباد کہہ کے دوبارہ انفارمیشن منسٹر بنے ہیں، اور یہ کام ویسے بائی دا وے انہوں نے بادل نخواستہ کیا ہے۔ ان کا بڑا دل لگ گیا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، وہاں نئی نئی انوویشنز کر رہے تھے، وہاں پہ بھی بڑے انہوں نے کارنامے کیے ہیں، لیکن یہاں ان کی زیادہ ضرورت تھی تو وزیر اعظم نے انہیں یہاں بلایا، تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کل میری وزیر اعظم سے ایک تفصیلی نجی ملاقات رہی، اس میں جو کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے رہے ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ جہانگیر ترین کی دونوں طرف سے جو محبت ہے وہ شاید ہی پارٹی میں کسی اور کی جہانگیر ترین کے ساتھ اس طرح کی رہی ہو۔ وزیر اعظم صاحب کو انتہائی افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ جو الزامات لگے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر، جس کی وہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے اور وہ جس کو بھگت رہے ہیں، اس کا وزیر اعظم کو دکھ ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اس انکوائری کا، الزامات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے کہ اپوزیشن کا کوئی شخص سامنا کرتا ہے، اور یہ کام کرنا جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو دوست، جہانگیر ترین صاحب تو نہیں، ان کے جو دوست رفقا جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے بالکل صاف ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک کے ساتھ جو اپوزیشن میں ہے اس کے ساتھ فرق سلوک رکھیں اسی الزام پہ، اور جو اپنے دوست ہو اس کے ساتھ فرق سلوک رکھیں کسی الزام پہ، اور مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ علی ظفر صاحب کو لگایا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے جو شکایات ہیں، معاملات ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے، اور ایف آئی اے کی جو دیگر اداروں کی جو انکوائری چل رہی ہے انہیں دیکھنے کے لیے، اور ایک جامع مکمل رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو سبمٹ کریں گے۔ علی ظفر صاحب کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میری خود جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ ہی واز ہیپی ود اٹ، انہوں نے کہا جی مجھے بس ایک نیوٹرل آدمی چاہیے۔ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ایک ویل نون لائر ہیں، اور ان کی معاشرے میں ایک عزت ہے، ان کے والد صاحب کی ایک بڑا نام یہاں پہ رہا ہے، تو وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی رپورٹ آئے گی وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو رفقا جو ان کے ساتھ وہاں پر ہیں، وہ پارٹی کا، تحریک انصاف کی حکومت کا برا نہیں چاہتے۔ ان کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کی چیزیں تھیں، انہیں دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اور یہ اللہ کرے کہ جہانگیر ترین صاحب، میری دعا ہے کہ وہ ان تمام الزامات سے کلین وہاں سے نکلیں۔ اللہ کرے کہ الزامات غلط ثابت ہوں، جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں، لیکن یہ اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس کا پروسیس کسی کے لیے وزیر اعظم چینج نہیں کریں گے۔ عمران خان کے پاس اگر ایک سب سے بڑا جرم اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کیا ہے، تو وہ قومی دولت یا قومی اثاثوں کے اوپر اگر کوئی الزام آتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر خان صاحب فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جو ان کے ساتھ کام کیا ہے، جو پرانے رہتے ہیں، سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت اکانومی پہ فوکس ہے۔ اکانومی ملک کی جو ہے وہ بہترین
जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं, रिजर्व्स हमारे बढ़ गए हैं और हमें इस वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा। जो हमारे इस वक्त माशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डॉलर पाकिस्तान में कमजोर हुआ है, रुपया ताकतवर हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से शुमार हो रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतरीन हो चुकी हैं। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ उभर के दुनिया के नक्शे पर आए और वज़ीर आज़म की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जिसका जिक्र अभी फवाद चौधरी ने आपसे किया कि सऊदी अरब के साथ ख़ास तौर से हमारे जो दोस्ताना मरासिम और ताल्लुकात हमेशा से रहे, उन्हें मजबूत तर करें। जो हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें मज़ीद बेहतर बनाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो एक इमेज है, जो उनकी एक अपनी ज़ाती पर्सनालिटी है, वो सारी दुनिया को एक्सेप्टेबल है। वो एक इंटरनेशनल लीडर के तौर से उभरे हैं। तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान का जो पीस लविंग मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। ईरान से हमारे ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएँ। हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब अफगानिस्तान से इनखला हो फौजों का, अफवाज का, तो उस वक्त हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारी की सारी वो हमारे दोस्तों में शुमार हो, न कि हमारी बॉर्डर पे हमें टेंशन शुरू हो जाए। तो लिहाजा आने वाला वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बेहतरीन वक्त साबित होने जा रहा है। जो लोग इस वक्त बौखलाए हुए हैं, ऑपोजिशन जो इस वक्त गड़बड़ाई हुई है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर गड़बड़ाई हुई है कि जिस स्पीड से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो लेकर जा रहे हैं तरक्की की जानिब, जो पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं एक खुशहाल पाकिस्तान की जानिब, जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं, उससे वो घबराए हुए हैं कि शायद वो उनकी जो एक सियासत है, जो मनफी सियासत है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। तो लिहाजा चाहे वो हम हाईलाइट कर पाएं या ना कर पाएं, चाहे हम आपको अपनी चीज़ें बता पाएं या ना बता पाएं, एक आम आदमी आपको सड़क पे ये बता देता है कि जी ये पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। जो महंगाई का रोना इस वक्त रो रहे हैं अपोजिशन वाले, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया में इस वक्त तरसीलात जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं, शिपमेंट्स बंद हुई हैं, कंटेनर्स नहीं मिलते। दुनिया के अंदर इस वक्त हर चीज़ महंगी हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान की देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, चाइना देख लें, ईरान देख लें, हर जगह के ऊपर महंगाई हुई है इस कोविड के अंदर। और ये बात सब जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन वो वजीर आजम के ऊपर क्योंकि और कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो यही थोपना ज़रूरी है कि चलो महंगाई के ऊपर ही बात कर लें। सबसे ज़्यादा फिक्र अगर वजीर आजम को किसी चीज़ की है आज, तो गरीब आदमी की ज़िंदगी की है। महंगाई की उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र है। जो क्रिटिसाइज करते हैं कि जी उनको फाइनेंस मिनिस्टर कोई सजता नहीं, ये वजीर आजम की बारीक बीनी है कि वो हर चीज़ को बड़े गौर से बैठ के फिक्र के साथ उसको देखते हैं, सियासी तौर पर नहीं। वजीर आजम वाकईतन अपने आम आदमी की एक आम जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोशां हैं। शौकत तरीन साहब जो अब आए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमें उम्मीद है कि वो इस इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज करेंगे। वो एक काबिल आदमी है, उन्हें वजीर आजम साहब बड़े अरसे से जानते हैं। इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो पीछे रह गई हैं, जो हफीज शेख साहब की तरफ से रह गई हैं, हफीज शेख साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया इकॉनमी में, लेकिन जो चीज़ें इन्फ्लेशन वगैरह जो चीज़ें रह गई हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो देंगे। और वजीर आजम इमरान खान इसके ऊपर बड़ी बारीक बीनी के साथ कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, दालें सस्ती हो, चावल सस्ता हो, घी सस्ता हो, ये आवाम को मिले, इसके ऊपर एक जामे मनसूबा बना रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी आप सबको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो है वो पूरी मुल्क में है, पूरी दुनिया में भी है। आप ये बताएं कि सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिंध हुकूमत जो कोविड के हवाले से जो स्टेप्स ले रही है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? और क्या कराची में आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में कोई लॉकडाउन वगैरह की ज़रूरत है?
देखिए, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तशरीफ लाए थे मेरे पास और हमने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की थी और मेरी फिर असद उमर से भी इसके ऊपर मुसलसल मुलाकात रहती है, बातचीत रहती है। पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, तशवीशनाक हद तक कोरोना बढ़ गया है। पाकिस्तान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो 92% इस वक्त यूटिलाइज हो रही है। इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन कम करके वो ऑक्सीजन अस्पतालों की तरफ डाइवर्ट की जा रही है। अगर इस कंडीशन को हमने काबू ना पाया, अभी हम इसको ना रोक पाए, खुदा ना खास्ता ये थोड़ा और इसकी सिचुएशन बढ़ी तो हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। लिहाजा मेरी ये भरपूर दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि खुदा के वास्ते कोरोना को बड़ा सीरियस लें, ख्वाह वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो या पंजाब या गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हमें इसको मिल के इसका मुकाबला करना है। हमें ये नहीं देखना कि जी क्योंकि ये हुकूमती अरकान कह रहे हैं लिहाजा मैं ना करूं, या क्योंकि ये अपोजिशन, जैसे कि सिंध में आपने अर्ज किया कि मुराद अली शाह साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं लेकिन वो अपोजिशन में है वफाक की, तो वो भी अपने जो इक़दाम कर रहे हैं NCOC के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनकी मुशावरत के साथ कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम जमातें, इस वक्त तमाम हुकूमतें अपने अपने तय बेहतरीन इंतजाम कोरोना के करने की कोशिश करें और हमारा फ़र्ज़ है कि चाहे आपकी सियासी वाबस्तगी ना हो, चाहे आपकी सियासी लड़ाई हो, लेकिन एक दूसरे के साथ कोरोना के इक़दाम में हमें सपोर्ट करना है। तो मैं मुराद अली शाह साहब के जो इक़दाम हैं उन्हें मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूँ। उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर उन्हें कहीं भी इसमें हमारी ज़रूरत पड़ी, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। देखें, जो क्या बैलेंस करने की जरूरत है, कई आज से पहले कभी किसी ने बैलेंस किया? किसी हुकूमत ने? वजीर आजम इमरान खान कभी भी ये ज्यादती नहीं करेंगे कि अगर वो एक आदमी चोर है तो उसको पकड़ने के लिए वो एक शरीफ आदमी को पकड़ ले कि जी इसको भी पकड़ लो ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट लगे। ये इमरान खान से तवक्को न रखें। इमरान खान वो शख्स है जिसने जिंदगी भर सख्त से सख्त फैसले किए हैं और आज भी वो बड़ा सख्त और कठिन फैसला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो लिहाजा कोई शख्स ये अपने बात जहन में ना लाए कि कम से कम वजीर आजम की हद तक तो मैं आपसे कह सकता हूं कि वो किसी सूरत भी कोई बैलेंसिंग एक्ट के लिए किसी शरीफ आदमी को या किसी गलत चक्कर में फंसा के बैलेंसिंग सियासी एक्ट करने के लिए ऐसा कभी भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया, जिस तरह की गवर्नर साहब ने आपको बताया, हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से और पहले साल में हमने जो सऊदी अरेबिया फिर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और एक जो जिस किस्म का एक समझिए कि राबता हमारा उस्तवार हुआ सऊदी अरेबिया से, वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पहले से मौजूदा ताल्लुकात कार हैं उनमें इजाफे का बायस बनेगा और एक बहुत बड़ा जो मुआशी ताउन जो पहले ही सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को मिल रहा है, इसके नतीजे में उसमें भी इजाफा जो है वो इंशाअल्लाह यकीन जी। पहली बात तो यह है कि जो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है वो जाली है और हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ बस्टर है उसने उसकी तरदीद भी जारी कर दी है। लॉकडाउन की देखिए, इस वक्त लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुँच गई। अगर हमने ये इस वक्त जो ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है, अगर ये शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। और NCOC इस वक्त पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, अगर हमने किन सप्लाईज को बहाल रखना है, कैसे रखना है, और ये एक पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। इसीलिए दुआ ये है कि हम बच जाएं लॉकडाउन से, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो हमारे पास और चारा नहीं हो। शुक्रिया। के अंदर केसेस का बढ़ाव ज्यादा हुआ तो फिर लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस्लामाबाद में